بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ خاتون جسے اللہ نے اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی، وہ پاک باز خاتون جن کے نام پر قرآن مجید میں ایک پوری سورت اتار دی گئی، اس پاک خاتون کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور کہا، اے کنواری مریم، اللہ تجھے ایک نیک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے۔ خاتون نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے کہا، ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ نیک اور پارسا خاتون کون تھی جو قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئیں؟ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ حنا داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد، زاہد اور عالم تھے، اس لیے مسجد اقصی کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، بی بی حنا کے ہاں اولاد نہ تھی۔ ایک روز آپ نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اسے دانا کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا کی اور منت مانی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نظر کر دیں گی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل کے یہاں یہ رواج تھا کہ جو لڑکا اللہ کی نظر کر دیا جاتا تھا وہ نہ تو شادی کرتا تھا اور نہ ہی دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ میں خدمت کرتا اور خود عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ لہٰذا حنا نے اللہ سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، لیکن ان کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ چنانچہ جب بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہوئی تو ماں کو یہ فکر ہو گئی کہ اس کی نظر قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دستور کے مطابق لڑکی نظر کرنے کی ممانعت تھی۔ اسی کشمکش میں اللہ سے یہ دعا کی کہ اے رب، میں نے تو لڑکے کی درخواست کی تھی، لیکن جو اللہ کی ذات بابرکت کا علم ہے وہاں تک انسانی سوچ کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ نے جس لڑکی کو پیدا فرمایا تھا اسے دراصل مقدس ماں بنانا مقصود تھا، جس میں سے ایک عظیم الشان مبارک و مسعود بیٹے نے پیدا ہونا تھا جو پیدائشی نبی تھا۔ بہرحال بی بی حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں، چونکہ آپ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھی، اسی لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ بی بی مریم کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد وفات پا گئے، اس لیے حنا نے ولادت کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا۔ پیارے دوستو، جب بی بی مریم بیت المقدس میں لائی گئی تو مجاوروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی یہ چاہ رکھتا ہے کہ حضرت مریم کی کفالت اس کے سپرد کر دی جائے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین وہ قلم جس سے وہ توریت لکھتے تھے پانی میں چھوڑ دیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کی بجائے الٹا بہے، وہی حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ پیارے دوستو، اس مقابلے میں حضرت زکریا بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں بہاؤ کے الٹے طرف بہایا اور ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ بی بی مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا کی کفالت میں دے دیا گیا۔ پیارے دوستو، حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ لگتی تھی، اس لیے ان سے بڑھ کر ان کی پرورش اور کون کر سکتا تھا۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں رہائش پذیر ہو گئی۔ آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ جب بھی حضرت زکریا آپ کے پاس آتے تو وہ حیران ہوتے، کیونکہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی حیرت بجا تھی۔ تبھی حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام پرسکون ہو کر فرماتی ہیں کہ اللہ کے پاس سے۔
तभी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से वारिस के लिए दुआ फरमाई। आपकी बीवी के भांज होने के बावजूद मोजज़ा खुदाबंदी से आपके यहाँ हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। प्यारे दोस्तों, बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की अज़मत व फजीलत को रब करीम ने कुरान मजीद में बार बार फरमाया है और अपनी मोमिना बंदी की पाकीज़गी और पाकदामनी का ऐलान किया है। जैसा कि सूरत अल इमरान में इरशाद हुआ, और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हें और खूब पाक कर दिया है और पसंद किया है तुम्हें सारे जहान की औरतों से। ए मरियम, खुलूस से इबादत करती रहो अपने रब की और सजदा और रुकू करने वालों के साथ। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम जिस मकसद के लिए चुनी गई थी वो अभी बाकी था। आप दिन रात अल्लाह की इबादत और रियाजत में मशगूल रहती थी। यहाँ तक कि बनी इसराइल में ये मशहूर हो गया कि बीबी मरियम नहायत ही इबादत गुजार, पाकीज़ा और मुत्तकी खातून है। फिर वो वक्त आया जब बीबी मरियम की उम्र तकरीबन 15 साल हुई तो एक फरिश्ता खूबसूरत नौजवान मर्द की शक्ल में नमूदार हुआ, जिसे अलहदगी में देखकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम खौफज़दा हो गई और वो अपनी असमत की हिफाजत के लिए फिक्रमंद हो गई। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम आपको देखकर बोली, अगर तू कोई खुदा तरस इंसान है तो तुझसे खुदाए रहमान की पनाह मांगती हूँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको तसल्ली देते हुए और पैगामे इलाही से बाखबर करते हुए फरमाते हैं, मैं तो तेरे रब का फर्जदादा हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे एक पाकीज़ा लड़का दूँ। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम हैरान होकर फरमाती हैं, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं और ना ही मैं कोई बदकार औरत हूँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा नहीं होगा। तेरा रब फरमाता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है और हम ऐसा इसलिए करेंगे कि इस लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बनाएंगे और अपनी तरफ से एक रहमत, और ये काम होकर रहना है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के गिरेबान में फूंक मार दी, जिससे आपका हमल ठहर गया। जब बीबी मरियम अलैहिस्सलाम हामिला हुई तो ये खबर बनी इसराइल में आम हो गई कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हामिला हो गई है। इस पर बहुत से लोगों ने ज़करिया अलैहिस्सलाम के घर आना जाना बंद कर दिया और आप पर इल्ज़ामों बहतान लगाने लगे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस से निकल गई और दूर एक मुकाम पर जाकर ठहरी। प्यारे दोस्तों, इस बारे में एक किस्सा कई बुजुर्गों ने जिक्र किया है कि जब आपका हमल जाहिर हुआ तो सबसे पहले बनी इसराइल के आबिद और जाहिद शख्स वहाब बिन मुनव्वा, जो आपके खालाजाद भाई थे, इंतहाई ताज्जुब में पूछा कि ए मरियम, क्या बीज के बगैर खेती उग सकती है? फरमाया, जी हाँ, बताओ किसने पहली मर्तबा खेती को पैदा किया? फिर पूछा कि क्या बगैर मर्द के औलाद हो सकती है? फरमाया कि जी हाँ, अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। फिर कहा कि अच्छा, अपनी खबर दो। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे खुशखबरी दी है कि अपनी तरफ से एक निशानी है जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा। दुनिया और आखिरत में साहिबे मर्तबा होगा और लोगों से बचपन और बुढ़ापे में कलाम करेगा। मरियम अलैहिस्सलाम जिस दरख्त के पास बैठी थी वो एक खुश्क सूखा हुआ दरख्त था। जब आप उस दरख्त को हिलाती तो मौजज़े से वो दरख्त सरसब्ज होकर फल देता था। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम दर्द से बेचैन थी, बदनामी का ख्याल था। घबरा कर कहने लगी, काश मैं पहले ही मर गई होती और भूली बसरी हो गई होती। इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के कदमों के करीब एक नहर जारी कर दी और निदा आई कि पानी पियो और खजूर खाओ ताकि जिस्म को तक़वियत पहुँचे। फिर अपनी औलाद को देखकर आंखों को ठंडक पहुँचाओ।
प्यारे दोस्तों, इस्लाम आने से पहले बोलने का रोज़ा रखना इबादत में दाखिल होता था, यानी सुबह से रात तक किसी से बात ना करते। बाद में ये हुक्म मनसूख हो गया। लिहाजा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परेशानी दूर करने के लिए कहा गया था कि तुमसे कोई शख्स इस बच्चे के बारे में पूछे तो इशारे से कह देना कि मैंने चुप का रोज़ा रखा है। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कुछ तसल्ली हुई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिर आप अपने बेटे को कौम के पास ले आईं। कौम के लोग आपकी गोद में बच्चा देखकर गज़बनाक हो गए और आपकी इबादत गुजार और पाकीज़ा ख़ानदान का हवाला देते हुए आपसे बदगुमान हुए और इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। जब हालात बहुत ज़्यादा तंग हो गए और सोच समझ के दरवाजे भी बंद हो गए, सिर्फ तवक्कुल का दारोमदार अल्लाह की ज़ात ही रह गई थी, तब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस बच्चे से बात कर लो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब ये बच्चा देगा। सरकश लोगों ने कहा कि भला ये दूध पीता बच्चा हमारे सवालों के जवाब कैसे देगा, हम क्यों करें इससे गुफ्तगू। प्यारे दोस्तों, कौम का ये कलाम सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बोलना शुरू कर दिया, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में यूँ फरमाया है। और जब बच्चे ने फरमाया, मैं हूँ अल्लाह का बंदा, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी किया, उसने मुझे मुबारक किया, मैं कहीं हूँ, मुझे नमाज और तकवा की ताकीद फरमाई, जब तक मैं जीऊँ अपनी माँ से अच्छा सलूक करने वाला, और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया, और सलामती है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूँ और जिस दिन जिंदा उठाया जाऊँगा। इसके बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र चली गई। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 13 बरस हुई तो बैतुल मक़दस वापस आ गई। प्यारे दोस्तों, बुखारी शरीफ में मौजूद है कि हज़रत इबादा बिन सामित से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, और जिनको अल्लाह ने मरियम की गोद में डाला, और जन्नत हक है और जहन्नुम हक है, तो अल्लाह उसको जन्नत में ज़रूर दाखिल फरमाएंगे, चाहे वो जैसे भी अमल लेकर आए। रिवायात में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तारीख़ वफ़ात 35 ईस्वी और आपकी उम्र मुबारक 51 साल लिखा गया है। इस्लाम के अलावा कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स ईसाई भी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को निहायत ही अकीदत और एहतराम की निगाह से देखते हैं, और आप वो वाहिद खातून हैं जिनका नाम कुरान पाक में दर्ज है और बाइबल के पुराने अहदनामे में भी मौजूद है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे खबर दी कि जन्नत में मेरा निकाह मरियम बिनते इमरान, मूसा की बहन कुलसूम और फिरौन की औरत आसिया से होगा। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको कल्बे सलीम अता फरमाए और कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए, तब तक आपका अपना चैनल कनीज़ फातिमा। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।